senior lawyer and will deliver lecture on land revenue matters. You will really enjoy this lecture. He has command on his area of expertise, ex-member Punjab Bar Council, and you will see expertise which he is serving from a long period of time in this fraternity. Sir, you are most welcome here. थैंक यू जी, थैंक यू। तो वो कहाँ है जो आपने वो करना है? ठीक। जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। हो गई है शुरू, चलो ठीक हो गई। तो ये तो सारे न्यू एंट्रेंट हैं। सही सही हो गया, ठीक हो गया। ये तो हो गया ना, लग गया। तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ। तो ऐसा है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो सब्जेक्ट है ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो मैं आपको इसके कुछ फेजेस के बारे में बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई डिफ़िकल्टी इतनी नहीं है और इट इज़ टू मच ईजी इफ़ यू नो हाउ टू प्रोसीड फर्दर। देयर आर सिंपल मैटर्स द रेवेन्यू कोर्ट्स हैव ए समरी ट्रायल even without recording of the evidence, even without framing of the issues. The matter has to be decided, and which are being decided within months, not in the years. They are providing the early justice to the rural background areas, landowners, the tenants of the lands, and all the matters regarding the land we can refer in the revenue courts. Regarding ownership, inheritance, partition, ejectment suits, all the matters you can refer in the civil court and you can get early relief. First of all, there are different subjects on the land laws or the Land Revenue Act, the Colonization of the Government Land Act 1912, the Punjab Tenancy Act 1887, the Consolidation Holding Ordinance 1960, the Redemption and the Restitution of the Mortgage Land Act, and many other acts. But the relevant laws which are most important, first of all we have to see that there is a Land Revenue Act 1967. Under Land Revenue Act there is different categories of litigation. Number one, we can bifurcate into the categories. Number one is a appeal which can be filed against the orders of the assistant collector first grade or second grade or the tehsildar, which have been passed under section 42 or have been passed during the demarcation and have been passed under tenancy laws. All the appeals are competent to be filed before the learned assistant commissioner / collector. Under Land Revenue Act, you have to file an appeal under section 161 of the Land Revenue Act. The time limit for filing of this appeal is 30 days, which can be filed against the mutation which has been sanctioned under section 142 of the Land Revenue Act. First of all, we have to see what has to be written in the appeal, which grounds are required to be mentioned for filing an appeal against a mutation. The revenue officer is competent to sanction the mutation regarding the inheritance matters, the sale deeds, and oral sale mutations under section 42. Under section 42, he is under obligation
to enter a Rapat Roznamcha in the Roznamcha? Under obligation means he is a duty bound. He has to enter the mutation. He cannot refuse to enter the mutation on the basis of sale deed. He is the Patwari who has to enter the mutation. But this has to be sanctioned only by the revenue officer who called Tehsildar, Naib Tehsildar. The orders of the Naib Tehsildar and Tehsildar both can be challenged under section 161 of the Land Revenue Act by giving the different reasons. If there is a oral sale mutation, there is mandatory requirement in section 42 of the Land Revenue Act. It has to be sanctioned after entering the Rapat Roznamcha. It has to be sanctioned in the revenue state after recording the statement of the villagers, vendor and vendees. It has to be sanctioned after conducting the inquiry. You can raise the objection that this mutation has not been sanctioned in the revenue state, but the same has been sanctioned in the office, which often these orders have been passed by the revenue officer in their offices. Other mutation, other allegation and objection which can be raised, that is the mutation has been sanctioned without conducting any inquiry, without recording the statements of the witnesses. And the other thing, the land which has been sold correctly has not been mentioned, the share has not been correctly mentioned, the mutation has been sanctioned without by transferring the specific share without partition. These are the grounds which can be mentioned in the mutation section 42. And other ground which your client disclosed to you, but right of appeal has been given by the Constitution. It has to be admitted very first day. You have to prefer before the court, which mark it to the reader or the almad who wrote some note. What is a note? वो लिखेगा रिपोर्ट कैफियत सरिश्ता. कैफियत सरिश्ता, ये अपील आज दायर की गई है, इसके ऊपर कोर्ट फीस मुकम्मल है, फला फला चीज़ पर लगा हुआ है, वकालतनामा 7 लफ है, इम्प्यून्ड ऑर्डर की कॉपी मुसद्दका लगी हुई है, अपील अंदर म्याद है या नहीं है. ये 4-5 चीज़ें उसके ऊपर उसने लिखनी है. उसके बाद दोबारा रेवेन्यू ऑफिसर की वो जो अपील है वो एसी कलेक्टर साहब के पास पेश हो जाएगी. देन यू हैव टू आर्गू द मैटर. इट विल बी एडमिटेड, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी एडमिटेड. देन the simple notices are required to be issued, but there is an independent process without issuing any, without submitting any notice, registry lifafa, registered AD, there is not requirement. You have to file a talbana of ₹2 or ₹10 by annexing the summons, which will be referred to the revenue officer concerned through Tehsildar and through Patwari. They will summon all the peoples. This is a very effective process. If compliance is not made and parties are not appearing, then you can file, then you can submit the registered AD etc. But not more than 2 or 3 pages. All the respondents shall appear before the court, and you have to argue the matter, and it will be decided. The thing which I want to say, there is a summary process. You will be succeed to justify your fee within 2 or 3 months, inshallah, if you will approach the court. There is other category of the mutation, mutations of inheritance. Mutation of inheritance obviously has to be sanctioned by the revenue officer even after the orders of the civil court, session court or high court, even after the order of the Supreme Court. It has to be sanctioned by the revenue officer. Then it has to be sanctioned by the revenue officer. Therefore, the appeal should be filed before the revenue court.
Not civil suit is not required to be filed in the inheritance matter, not at all. This is misdirection. You will not succeed to get early justice. कतन फाइल नहीं कर रही, कोई दावा नहीं दायर करें उसके बारे में. Jurisdiction is bar. उस तमाम सिविल कोर्ट इज एंटरटेनिंग ऑल द केसेस. अंडर व्हाट कैपेसिटी इट इज एंटरटेनिंग. टोटल कंसेप्ट गलत है. ठीक है, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है. देयर इज अ रेमेडी हैज बीन अवेलेबल विच हैज टू बी अवेल्ड बाय द पार्टीज. तो ये है वो. फिर जैसे कभी चला आ रहा है कि नहीं जी मैटर ऑफ एविडेंस है, एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड. देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड बाय द रेवेन्यू कोर्ट्स. तो ये हो सकता है. सारी बात समझाने का मतलब आपको ये है कि आप ये ना समझे कि रेवेन्यू बहुत बड़ा डिफिकल्ट जॉब है और ये बहुत बड़ा मसला है और क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे. हम करते हैं और हमें हमारे लिए बड़ा इजी है. तो आपको समझाने का मतलब ये है कि ये दिस इज ए नॉट टू डिफिकल्ट जॉब. अच्छा, अब आगे मैटर सिर्फ और सिर्फ हैं आपके म्यूटेशंस के इनहेरिटेंस का है. ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड द म्यूटेशंस आर बीइंग सैंक्शनड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर दिस म्यूटेशन कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द रेवेन्यू कोर्ट और नॉट. दिस कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द रेवेन्यू कोर्ट. The appeal is a competent even on the basis of mutation which has been sanctioned on the basis of the sale deed. The appeal is a competent before the assistant commissioner. There is a matter that the land has been sold more than entitlement. This fact has to be calculated by the revenue court whether the land has been sold more than entitlement or not. The matter which has been decided, which has to be decided by the revenue court, why should it be referred before the civil court? इनहेरिटेंस का म्यूटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, सैंक्शन तो उसी ने करना है. तो जब सैंक्शन उसी ने करना है तो पहले ही आप उसी से ही करवाएं. आपने ढेर लगा दिया सिविल कोर्ट में केसेस का और रेवेन्यू कोर्ट्स तो डेली केसेस का फैसला कर रही होती हैं. देयर इज नो पेंडिंग केसेस. सब लोग फारिग बैठे हैं. तो ये टोटली कंसेप्ट ठीक नहीं है. बार मतलब बताने का आपको ये है कि आप उसको अप्रोच कर सकते हैं. तो ये बात है, थोड़ी सी बात लंबी हो गई. अच्छा, तो मेरा ख्याल है म्यूटेशन की बात जो है मैंने काफ़ी डिटेल से कर दी है. अब वो मैं अर्ज कर रहा था कि सेल डीड क्यों चैलेंज हो जाएगी. देखें, सेल डीड्स में देर आर एलिगेशंस that the land already has been sold by the different persons and we are holder of the senior sale deeds and this mutation has been sanctioned on the basis of the junior sale deed, therefore this mutation is required to be cancelled. These mutations are being cancelled by the revenue courts and matter are being referred to the sub registrar. Simple note of sub registrar is required on that sale deed that the mutation on basis of this sale deed has been cancelled. और बिलाखिर भी फर्ज करें रेवेन्यू कोर्ट सिविल कोर्ट ने फैसला करना है, फिर भी उसने उसी को भेजना है कि फला फला म्यूटेशन को कैंसिल कर दें. तो ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस मौजूद है, तो वो भी हो सकती है. अब रही बात उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होने की. देयर इज द रूल 6A ऑफ द लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 which providing the matter can be referred for recording of the evidence by any court, even by the learned assistant commissioner, learned additional commissioner revenue or the learned member board of revenue. The matter can be referred for recording of evidence and after recording of the evidence by the tehsildar, the matter again will be referred to the court and on the basis of that evidence the matter will be decided. तो कहने का मतलब ये है कि वो आप उसको रेफर कर सकते हैं वहाँ पर. तो वो जो एक सोच है कि देयर इज इंट्रिकेट क्वेश्चन एंड द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन विच रिक्वायर्ड द एविडेंस, देयरफॉर द मैटर शुड बी रेफर्ड टू द सिविल कोर्ट. आई थिंक दिस इज नॉट टू एक्सटेंट, दिस इज नॉट ए करेक्ट थिंकिंग ना, दिस इज थिंग. अब म्यूटेशन की बात मेरे ख्याल होगी. मैं ये सोच रहा था कि एनी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूटेशन, अगर कोई सवाल आपका है ना इस बुनियाद पे इंतकाल के बारे में, वो बता दें. फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पार्टीशन का करते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे. अब
ये तो ना इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन ही टेकअप करते हैं। देयर इज सेक्शन 172 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, मैं पढ़ूंगा उसको, अभी मैं पढ़ता हूँ, उस पर आते हैं दोबारा। लेकिन देयर इज नो जुरिस्डिक्शन एट ऑल। देखिए जब स्पेसिफिकली बाहर है, एक तो जुरिस्डिक्शन दी हुई है और दूसरा फिर रेमेडी भी दी हुई है अंडर सेक्शन 161, 163 एंड 164 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट। आपको अपील की, रिव्यू की और निगरानी की, तीनों जो है रेमेडीज दे दी हैं। जब कानून ने आपको दे दी हैं तो फिर क्यों, अगर फ़र्ज़ करें वो तहसीलदार ने आर्डर ठीक नहीं किया तो एसी साहब के पास चले गए, उसने आर्डर ठीक नहीं किया तो आप एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू के चले गए, अगर उसने ठीक नहीं किया तो आप चले गए मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। तो ये थोड़ा सा नहीं है, मैं एग्री नहीं करता। वैसे तो मैटर्स आर बीइंग एंटरटेन्ड, द मैटर्स आर बीइंग एंटरटेन्ड बाय द सिविल कोर्ट ऑन 2 grounds. One, the impugned order has been passed with the malified intention, 2 grounds हैं, and second, the impugned order has been passed without having the jurisdiction. If you have to file a civil suit, then 2 grounds has to be mentioned by you in the suit which required to be proved, तो फिर वो entertain हो जाता है बगर्ज़ इंसाफ, फिर वो सूट एंटरटेन हो जाता है कि उसको इख्तियार नहीं था और अदालत की बदनीयती थी, तो फिर एंटरटेन हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? Question is a complicated. Again, please repeat this question, please. हाँ, ऐसे ठीक रहेगा। Land is transferred to the government department. What will be the exact forum for remedy for the? अब देखें जो स्टेट के नाम लैंड ट्रांसफ़र होती है ना, ये है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत होगी, ठीक है, 1894 के तहत उसने होना है ट्रांसफ़र। तो उसमें ना कोई रेमेडी ऑफ अपील और सूट की मौजूद नहीं है, तो इसलिए जब वो रेमेडी मौजूद नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रिट की है उसमें ना, वो होती है, वो चलती है। लेकिन उससे पहले भी है, उससे पहले आपने ऑब्जेक्शन भी फाइल करने हैं, 5A के ऑब्जेक्शन भी फाइल करने हैं, तो वो एक है रेमेडी, उस वक्त तक आप उस पर रेमेडी करेंगे, लेकिन बिफोर एक्विजिशन, बिफोर इशूएंस ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 6, ये है बात। थैंक यू। अच्छा, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि क्वेश्चन तो इतने नहीं आ रहे, तो फिर पार्टीशन के मैटर को देखते हैं। हाँ, वेलकम जी। अच्छा सर, हाँ हाँ, जी हाँ, ठीक है, दोनों सवालों का जवाब दे देते हैं। कि मैं जनाब की इजाज़त, एक सेकंड प्लीज़, एक सेकंड, आपकी इजाज़त के साथ सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी खुशकिस्मती है कि लेजेंड ऑन द रेवेन्यू साइड हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सर, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि मुकम्मल तौर के ऊपर हमारे दोस्तों को तो ये भी नहीं पता कि म्यूटेशन क्या चीज़ है, कौन सा डॉक्यूमेंट है और कहाँ पे होता है और कौन से मामलात वगैरह बीच में रेवेन्यू में जाएंगे। ये AC DC बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है क्या भला, इनका दफ्तर वगैरह है कहाँ पे, किस तरीके से, अगर थोड़ा सा पीछे जाके अगर ये इंडिकेट कर दिया जाए कि लैंड रेवेन्यू के नीचे कौन से मुकदमे आते हैं, शहरी वगैरह शहर के मामलात उधर आएंगे कि नहीं, तो मेरे ख्याल में शायद दोस्तों को बेहतर गाइडेंस वगैरह बिल्कुल सही, बिकॉज ये पार्टीशन वगैरह ही मेरे ख्याल में मुझे लग रहा था मुकम्मल तौर पे घूमे हुए हैं दोस्त ज़्यादातर, अनलेस जिन्होंने इस साइट पे काम किया हो। भाई आपके सवाल आ जाएंगे, पहले थोड़ी सी बेसिक देखिए ना, मलिक साहब ने वो सारे सवाल इकट्ठे माशाल्लाह कर दिए हैं। बात तो ये है एक ना कि बेसिकली चीज़ें जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि कौन क्या है ना। देखिए ना, सबसे पहले तो एक कैटेगरी है, बेसिक कैटेगरी, जिसे आप कह सकते हैं कि जो
लोअर कोर्ट की कैटेगरीज हैं जो आप कह सकते हैं कि सिविल जज 3rd क्लास में, 2nd क्लास में और 1st क्लास में आते हैं। तो देखें सर, वो सारे हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार, ठीक है। वो फर्स्ट कोर्ट है जहाँ पर पहली दफ़ा मैटर जो है वो जा रहा होता है, ओरिजिनल एक किस्म की जुरिस्डिक्शन म्यूटेशन की और पार्टीशन की, जहाँ से कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी है वो उनके पास है। सेल के म्यूटेशन भी उन्होंने एंटर करने, कोई म्यूटेशन का रिव्यू वगैरह है वो भी उन्होंने करना है। अब उसके बाद जो है पार्टीशन भी उन्होंने करनी है। इवन जितने भी मैटर्स हैं ना, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 के तहत, वो ऑल सूट्स फॉर इजेक्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर द तहसीलदार। ठीक हो गया, ये एक स्टेज हो गई ना। पहले तो सर फर्स्ट स्टेज सारी की सारी देही जमीन जो है, अर्बन लैंड इसके अंदर आती है कि नहीं वगैरह, ये अगर लाहौर शहर की कोई के मामलात वगैरह हैं वो रेवेन्यू वालों के पास जाएंगे, शहरों वाले के दूसरी प्रॉपर्टीज वगैरह दूसरे फोरम्स के पास जाएंगे। अब देखें, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ना जी, ये अप्लाई करता है लैंड्स के बारे में है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैंड्स के मैटर्स कौन कौन से हैं। ये लैंड्स ही हैं जिन पर हाउस कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब उसकी नेचर चेंज होगी या जुरिस्डिक्शन कब बार होगी उसकी। अब फर्ज करें एक जुरिस्डिक्शन देखते हैं। एक जुरिस्डिक्शन है डिमार्केशन ऑफ लैंड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि हु विल डिमार्केट द लैंड, whether the land falls within definition of the land, this piece of portion falls within the definition of land। इसमें बड़ा क्लियर है, हाँ कर दूं, इसमें बड़ा क्लियर है कि you require the demarcation by identifications of the boundaries of the khasra number। Your requirement is only to determine the boundaries of the khasra number। This is the matter ना। इसके लिए जाना है ना आपने कि जनाब मुझे बताया जाए कि ये जो खसरा नंबर है 305 खसरा नंबर है, इसकी हदूद कहाँ कहाँ पर आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कौन करेगा। द खसरा नंबर हैज बीन क्रिएटेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। द खसरा नंबर हैज द record of the aks shajara is made by the revenue officer। The record of this khasra number is kept in the record room of the revenue record, and the measurement mentioned of this khasra number, that is a field book which has been prepared by the revenue officer, meaning thereby the authority which has created the khasra number, he has the only jurisdiction, not at all no civil court, no authority, no LDA, no any development authority has the jurisdiction। This has been mentioned in the section 172 of the Land Revenue Act। There is a misconception totally, even the land falls within the definition of land or not, this is a no dispute at all। इस पर जजमेंट बहुत हैं, जो मैं कह रहा हूँ इसके खिलाफ भी जजमेंट मौजूद हैं, लेकिन मेरा एक अपना कंसेप्ट है। मुझे पता है कि 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, तो किसी और ने इसकी मेजरमेंट नहीं करनी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि डिमार्केशन की जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट्स की है। अब एक और बात, इस बात को थोड़ा सा आगे करते हैं। अब देयर इज ए डिमार्केशन इज रिक्वायर्ड of a house situated in the Johor town। Now the question arises that who demarcate this house? This house has to be demarcated, the boundaries of the plot are mentioned in the LDA record। The boundaries of the house are mentioned in the LDA record। They will tell you what is the actual measurement of this plot। They have jurisdiction, but if the LDA required the demarcation of the khasra number, then the LDA has no jurisdiction at all। No, not at all। Any development authority has no jurisdiction at all, even this is a constructed area। If the demarcation boundaries, identification of the boundaries of the khasra number are required, then
द ओनली रेवेन्यू ऑफिसर इज ए कॉम्पिटेंट। तो मेरा ख्याल है डिमार्केशन पे क्लियर हो गई जी। जनाब की आगे चलते हैं। जनाब की इजाजत से मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आप हाथ खड़ा करके बताएं कि आप में से कितने दोस्तों को पता है कि खसरा नंबर क्या चीज होती है? नहीं सर, जनाब जो वेरी राइट, कर रहे हैं हाँ हाँ ये बात है। खसरा नंबर, खतूनी, खेवट, अक्षजरा वगैरह। मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट होगी अपने दोस्त से कि आपको, मेरे ख्याल में आपके चेहरों से कम से कम मुझे ये लग रहा है कि खसरा, खतूनी, खेवट सारे के सारे सर पे से गुजर रहे हैं। तो ये वाली मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सर ज़रा पहले इनको ये बता दिया जाए कि तमाम जो ज़मीनें वगैरह हैं वो टुकड़ों में मुख्तस कर दी हैं, और उनके जो टुकड़े हैं उनके नाम किसी को क्या किस तरीके से किया जाता है, वो टर्म्स अगर एक्सप्लेन किया जाए तो फिर मेरे ख्याल में खुसर भी शायद इसीलिए हो रही है। अच्छा लो भी जेंटलमैन, योर काइंड अटेंशन इज रिक्वायर्ड। मेरा ख्याल ये है मलक साहब के सवाल से ना मेरे लेक्चर की डायरेक्शन बेहतर हो गई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की तो मैं वो क्लियर करता हूँ। ये बड़ा अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखें बात यह है, मैं ना एक डॉक्यूमेंट लाया हूँ। देखें इसे कहते हैं नकल रजिस्टर हकदारान, ठीक है ना, ये आपको पता है ना, फ़र्दें जारी होती हैं। अब देखें इसमें ना पहला कॉलम है, पहले कॉलम पर लिखा हुआ है खेवट नंबर, ठीक है, पहले कॉलम पर लिखा हुआ है खेवट नंबर। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज ए खेवट नंबर? द खेवट नंबर इज ए ओनर और ओनर्स नंबर, मालिक नंबर या मालकान नंबर, ठीक है। कितने मालिक हैं, यानी ग्रुप ऑफ ओनर्स और ओनर्स। सिंगल ओनर भी हो सकता है इस खेवट में, और एक बाप की औलाद भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन नंबर उसको अलाट हुआ है, एक ही नंबर अलाट हुआ है, वो कोई नंबर हो सकता है। और एक जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन है गांव में, उसमें तकरीबन 100, 200, 300, कोई आबादी में आ जाए तो ज़्यादा होते हैं, वरना जितने एक लैंड ओनर्स की फैमिलीज़ होती हैं ना गांव में, तकरीबन उतने ही खेवट होते हैं। बाद में बढ़ जाते हैं, अगर कोई पार्टीशन करवा ले तो खेवट बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात एक बाप है, उसकी औलाद ने पार्टीशन करवा ली अलग अलग, तो वो एक खेवट के अगली जमाबंदी हम कहते हैं रजिस्टर हकदारान ज़मीन को। अगले रजिस्टर हकदारान ज़मीन में जो 4 साल बाद बनेगा, हो सकता है कि बाप की खेवट अलग हो और बेटों की खेवट अलग हो, वो पार्टीशन में होगी, या उन्होंने मुश्तरका तौर पर लैंड सोल कर दी, जब सेल हो गई तो वो खेवट एक और नई क्रिएट हो जाएगी। तो खेवट्स बढ़ती हैं, हर 4 साल बाद खेवट बढ़ती हैं। तो मेरा ख्याल है खेवट नंबर तो क्लियर हो गया आपको। हाँ प्लीज़, खसरा से अगर शुरू करें तो वो मैं आता हूँ वहीं पे, वो ना वो उसमें कॉलम की तरतीब ही है, प्लीज़। विद द कंसेंट ऑफ ऑल लैंड ओनर्स, जब भी आप परचेज करेंगे ना, आपका खेवट अलग हो जाएगा। जब आप एक को शेयर से परचेज करेंगे फिर नहीं होगा, फिर यू हैव टू स्टेप इन शू इन द योर वेंडर, ठीक है, ये होगा। अच्छा मेरा ख्याल है खेवट क्लियर हो गया। अब कॉलम नंबर 2 है इसका कॉलम नंबर 2 जो है ना जी, उस पर लिखा हुआ है नंबर खतौनी काश्तकार। देखें पहले कॉलम में लिखा हुआ था नंबर खेवट मालिक, और दूसरे पर लिखा हुआ है नंबर खतौनी काश्तकार। अब ये जो दूसरे पर लिखा हुआ है ना, ये है टेनेंट नंबर, ये टेनेंट नंबर है, यानी कि मज़ारा नंबर, काश्तकार नंबर, मज़ारा नंबर। ये आमतौर पर एक आदमी होता है। एक खेवट में ना 6-7 लोग फर्ज करें मालिक हैं, तो देखें इस बंदे ने मज़ारा वो रखा हुआ है, उस बंदे ने मज़ारा वो रखा हुआ है ना, तो एक खेवट में खतौनी इसलिए ज़्यादा होती हैं। ठीक हो गया ना, खेवट तो एक होती है, खेवट के आगे खतौनीज काफ़ी होती हैं। खतौनी का मतलब टेनेंट नंबर है, उसकी वजह है कि बाज़ औक़ात खसरे होते हैं, तो कोई 2 खसरा नंबरान पर काबज़ है, कोई 4 पर काबज़ है, लेकिन ये टेनेंट नंबर है, मज़ारा नंबर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका ओनरशिप से कोई ताल्लुक बज़ाहिर नहीं है। सर अगर टेनेंट खुद बीच पे काश्त कर रहा हो तो क्या उसको खतौनी नंबर मिलता है? हाँ, अगर मालिक खुद काश्त कर रहा हो तो उसको भी खतौनी नंबर मिल जाता है। अगर वो जुज़वी तौर पे रकबा काश्त कर रहा हो ना, तो उसको भी खतौनी नंबर अलग अलाट होता है। बल्कि
हर मालिक का खतौनी नंबर इसलिए भी लग जाता है कि जो कॉलम है ना, इसका कॉलम नंबर है 4, कॉलम नंबर 4 है, कॉलम नंबर 4 है, वो नाम काश्तकार मा अहवाल लिखा हुआ है। ये जो बड़ा कॉलम है ना, ये बड़ा कॉलम सेंटर में, इसमें लिखा हुआ है नाम काश्तकार मा अहवाल। नाम काश्तकार मा अहवाल का मतलब है कि ही इज ए पटादार, ही इज ए टेनेंट एट विल, ठीक है जी, ही इज ए मॉर्गेजी, इसकी नेचर लिखनी है उन्होंने, और ही इज ए हिस्सेदार, ही में भी हिस्सेदार। अब हिस्सेदार है तो फिर उसको भी खतौनी नंबर लगा हुआ है। फिर बाज़ औक़ात इसमें लिखा होता है बदस्तूर, लफ्ज़ बदस्तूर, बदस्तूर मीन्स द पर्सन हु इज ए ओनर इन द ओनरशिप कॉलम, ही इज द कल्टिवेटिंग द लैंड, दैट्स व्हाई द वर्ड बदस्तूर हैज बीन यूज्ड। ठीक हो गया, इसका मतलब ये हुआ मालक मज़ार है। आमतौर पे द लैंड विच इज नॉट बीइंग कल्टिवेटेड, दैट लैंड रिफ्लेक्ट द बदस्तूर और मकबूजा मालकान। खाना नंबर 4 कहेगा मकबूजा मालकान या लफ्ज़ बदस्तूर, मीनिंग देयर बाय मकबूजा मालकान टेनेंट जो लैंड बंजर है या दैट इज़ आबादी, वो तो कोई काश्त तो नहीं ना कर रहा, तो वो बदस्तूर लिख देते हैं उसको, या उसको लिख देते हैं वो कि मकबूजा मालकान है, उसमें एंट्री नहीं होती। अब आ जाते हैं खसरा नंबर पर। खसरा नंबर इज ए पोर्शन ऑफ लैंड, खसरा नंबर इज ए पोर्शन ऑफ लैंड which created at the time of the settlement, at the time of creation of record, at the time of correction through settlement। 2 टाइम हो गए। 3 at the time of consolidation holding ordinance। अंडर कंसोलिडेशन होल्डिंग ऑर्डिनेंस मतलब कहने का उर्दू में, इस्तेमाल के दौरान खसरा नया बनता है, कार्रवाई इस्तेमाल के दौरान नया खसरा बनता है, या कार्रवाई बंदोबस्त के दौरान। ये सेटलमेंट का लफ्ज़ काफ़ी जगह पर यूज़ हो रहा है, लिहाजा जो उर्दू का लफ्ज़ है वो ज़रा याद रखिएगा। बंदोबस्त के दौरान खसरा नंबर तब्दील हो सकता है या इस्तेमाल की कार्रवाई के दौरान, वरना कभी खसरा नंबर तब्दील नहीं होगा। अगर आपने कोई लैंड ट्रेस करनी है तो खेवट नंबर हर 4 साल बाद तब्दील हो जाता है, खतौनी नंबर बदलती रहती है मज़ारों के साथ साथ, खसरा नंबर कभी चेंज नहीं होता। तो आपने खसरा नंबरान से ट्रेस करना होता है। जो ये रजिस्टर हकदारान ज़मीन है, जो इसके 2 पेजेस हैं ना, वो इंडेक्स के होते हैं ना, 2-4 पेजेस। वो जो 2-4 पेजेस इंडेक्स के हैं ना, उसके ऊपर तलाश करने के लिए मालकान के नाम से नहीं तलाश करते, वो उन्होंने सारे खसरे लिखे हुए हैं, उनके सामने खतौनी नंबर लिखी हुई है, ठीक है। वो फौरी तौर पर पेज खोलते हैं, वो खसरा नंबर से उसको ट्रेस कर लेते हैं कि ही इज़ द पर्सन और दिस इज़ द खेवट। वो शुरू के 2 पेज इसलिए लगे होते हैं उसमें। तो खसरा नंबर के बारे में अब आमतौर पे ये 8 कनाल का खसरा नंबर होता है हर विलेज में। ये 9-13 का भी होता है, 9 कनाल 13 मरला का भी, और ये 10 कनाल और 15 मरला के खसरा नंबरान भी हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है। देखें, जो है ना कॉलोनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912, इसके तहत जो भी लैंड आई और जो डेवलप हुई, जो चकूक बने, उसमें तमाम में मेजरमेंट उन्होंने 8 कनाल की रखी है, 8 कनाल की रखी है उसमें। इससे पहले वो थे कि जिसे हम गट्ठा कहते हैं या कर्म कहते हैं, कर्म की लंबाई कहीं पर 5 फुट है, कहीं पर 5.5 फुट है। उन्होंने 5.5 फुट के हिसाब से 8 कनाल रखा था, तो लिहाजा अब उसको मेजरमेंट हम करते हैं। एक जो आपको ये तो क्लियर होगा शायद, वो भी बता देता हूँ मैं, मेजरमेंट करनी होती है कर्म से। कर्म होती है 5 फुट की, एक मरले में 25 स्क्वायर फुट होते हैं, ठीक है। एक सरसाई में 25 स्क्वायर फुट होते हैं, एक सरसाई में
25 स्क्वायर फुट होते हैं। हाँ, सरसाई जो है 25 स्क्वायर फुट की है, 5 × 5 25 हो गया। मेजरमेंट हाँ ठीक है, लेंथ वो एक मीटर है ना, एरिया बन गया ना, मतलब ये वो आप कह सकते हैं कि जिस तरह मेजरमेंट की जाती है उसके बारे में मैं आपको, ताकि एकड़ तक ले चलूँ मैं आपको। अब 9 सरसाई का एक मरला हो गया, मरला में 225 स्क्वायर फुट हो गए। 20 मरले का एक कनाल हो गया और 8 कनाल का 1 एकड़ हो गया। ठीक है जी। अब बात आ गई दोबारा के अगर खसरा नंबरान तब्दील हो गए ड्यूरिंग सेटलमेंट, लाहौर में रिसेंटली सेटलमेंट प्रोसीडिंग हुई हैं, बंदोबस्त की प्रोसीडिंग हुई हैं मुख्तलिफ विलेजेस में, वहाँ पर भी आपने ट्रेस करना है तो वहाँ पर न्यू और ओल्ड खसरा नंबर लिखे हुए हैं। जो मिसल हकीयत है ना, मिसल हकीयत को कहते हैं परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसमें ओल्ड और न्यू लिखे होते हैं, तो वहाँ से ओनरशिप तलाश उसकी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है खसरा नंबर पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ ज़रा अगर पॉइंट आउट थोड़ा सा और भी तो चंद दोस्तों के लिए क्लियर कर दूं। ये हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने या मैं बार काउंसिल हूँ, मैंने रिकॉर्ड करना है कि कितने लड़के आए थे, कौन कहाँ पे बैठा हुआ था, कौन कौन से एरिया में बैठा हुआ था। नाउ व्हाट आई डू इज, ये एक साइड के ऊपर ये एक चक हो गया एरिया, उसके अंदर इतने बीच में खसरा नंबर हैं, एज एन ये 1 है, पोर्शन 2 है, ये आगे आके 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। समझाने की आपको, आप अगर अभी भी लॉस्ट हैं तो समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि लैंड को फिजिकल मेजरमेंट के मुताबिक हम डिवाइड अप कर लेते हैं। अब कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है, कौन कास्ट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, वो खतूनी के खाते के अंदर आ गया। सो अंडरस्टैंड दिस कि आपको ये खसरा नंबर और ये पोर्शंस, नाम लैंग्वेज तो आपको इस तरह लग रही है, मगर ये उर्दू में रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं अपने रजिस्टर में एक नक्शा, एक तरीके से अक्षजरा जिसे कहते हैं, वो अगर मैंने नक्शा भी बनाया है या डीमार्केशन है, इधर ये लड़का बैठा हुआ है, इस ग्रुप के अंदर इतने बंदे बैठे हुए हैं, आपका बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है कि ये इलाका मेरा है, हम दोनों ने ये किया हुआ है, उसको कैसे करना है, ये गुफ्तगू आपको लग रही है कि फॉरेन लैंग्वेज में गुफ्तगू हो रही है, मगर अगर आप प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने किया वो समझना शुरू कर दें तो आपको समझनी आज शुरू हो जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो टुकड़े हैं, खसरा जिसकी बात कर रहे हैं, ये फिजिकल एरिया है कि इतने एरिया के ऊपर ये होगा, इतनी कुर्सियों का ये एरिया, और बेसिकली नंबर वगैरह उसको दे दिए गए। अब हम सुबह फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन करते हैं कि नहीं जी यहाँ पे हमने ये स्क्रीन खोलनी है, तो ये कुर्सियाँ इधर शिफ्ट कर दें, तो उसके ऊपर उस कंसोलिडेशन के अंदर, यानी आप रिकॉर्ड को दोबारा से सीधा अगर आप कर रहे हैं तो आप शुरू से भी नंबर डाल सकते हैं जिसके अंदर खसरे नंबर तब्दील हो रहे हैं। सो अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो इसको भी आपको किताबों वगैरह में होगा, ये टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ है, मगर इसको समझे बगैर प्रॉपर्टी लॉ और ट्रांजैक्शंस आप समझ ही नहीं सकते, मुकदमा आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। ये चीज़ें आपके लिए सीखनी लाजमी है, इसलिए आंखें कान खोल के और गप्पे ना लगाएं वहाँ पे, बिकॉज ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुकम्मल तौर के ऊपर ना मुकदमा जीत सकते हैं, ना आपको समझ तक नहीं आनी और आपने मुकम्मल तौर पे गुम हो जाना है। तो ये ज़रूरी है, ज़रा देखिए। सॉरी। हाँ देखें, बड़ी प्यारी बात मलिक साहब ने की। मैं फिर दोबारा ना इसी डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ। देखें, बात यह है कि आपको ना ये डॉक्यूमेंट पढ़ना आना चाहिए। बहुत ना डिस्प्यूट, जितने प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं ना, इवन सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं आ रहा होता। जब पढ़ना नहीं आ रहा होता तो फिर हम उसे कैसे देखेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे उसको आर्गू करेंगे ना। तो ये चीज़ें ना इंतहाई ज़रूरी हैं समझनी। और इसको यानी ये दिस डॉक्यूमेंट, हर प्रॉपर्टी के सिविल केस में तो डॉक्यूमेंट है रेवेन्यू का कहीं ना कहीं, तो फिर जब रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट उसमें इन्वॉल्व है तो फिर कैसे आगे काम चलेगा ना, ये बात है। तो देखें, बात ये है, मैंने ये कॉलम नंबर 1 और 2 बता दिया। तीसरा कॉलम जो है ना वो ओनरशिप का कॉलम है। ओनरशिप के कॉलम में ना हिस्सेदारों के नाम लिखे हुए हैं और उनके आगे फिर उसके नेक्स्ट कॉलम जो है ना 3 के बाद 3 जो है ना वो आर है, 3 रे है वो गालबन, तो उसमें जो है ना अलिफ बे जीम दाल है,
3 दाल लिखा हुआ है। अब जो 3 दाल वाला कॉलम है ना, उसमें शेयर लिखे हुए हैं। अब देखें जो शेयर्स लिखे हुए हैं ना, जो शेयर्स लिखे हुए हैं उसमें वो शेयर्स आपको वो देखने हैं। जो शेयर्स हैं ना, वो आपने कहाँ से आने, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे और कैसे आपको पता चलेगा कि किस आदमी की मलकियत कितनी है, ये एक इशू है ना। तो देखिए ये जो शेयर लिखे हुए हैं ना, बाज़ औक़ात तो इसमें केवट का रकबा है, फ़र्ज़ करें आप इसको से कह सकते हैं कि 100 कनाल है, चलें इसको सिंपल फिगर में कर लेते हैं। अगर 100 कनाल रकबा उसका है ना, तो उसमें बाज़ औक़ात उन्होंने हर एक आदमी का शेयर, जिसका 15 कनाल है उसका 15/100 लिख दिया, जिसका 20 कनाल है उसका 20/100 लिख दिया। तो ये राउंड फिगर में आ गया और आप उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। बाज़ औक़ात इसको मरलों में लिख देते हैं। जब मरलों में लिखते हैं, 10 कनाल के मरले लिखे तो वो 200 मरले बन गए। तो जितना भी ज़राअत में जो है ना जी एग्रीकल्चरल लैंड का, वो आमतौर पे मरलों में होता है। शहर के जो अर्बन है, ख़ास तौर पर अर्बन एरिया, उसमें फुटों में अब आया है, वरना फुटों में नहीं होता था। जब से कंप्यूटराइज हुआ है उस वक्त फुटों में आ गया है। अब अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 10 कनाल का एरिया है, 10 कनाल के वैसे तो 200 मरले बनते हैं। अगर आपने देखा कि जो ऊपर लिखा हुआ है 20/200 लिखा हुआ है, 15/200 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये मरलों का शेयर बनाया हुआ है। और अगर आप देख रहे हैं उसी 10 कनाल का उन्होंने लिखा हुआ है 2250, तो इसका मतलब है कि आपने उसमें फुटों का लिखा हुआ है, ठीक है। या उसने 4500 लिखा हुआ है तो 4500 स्क्वायर फुट है, कनालों का लिखा हुआ है। अगर इससे भी ज़्यादा लिखा हुआ है तो आप जो टोटल एक्चुअल ओनरशिप है उसको 225 से कनालों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फुटों में फौरी तौर पे आ जाएगा, आपके सामने मरलों का आ जाएगा। तो वो आप शेयर इसमें से निकाल सकते हैं, कॉलम नंबर 3 में से आपको पता चल जाएगा। कोई इतना परेशान कुन नहीं है ये, ठीक है। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि वाकई इस आदमी की, फ़र्ज़ करें इन्होंने लिखी हुई है तो 1 कनाल 5 मरला लिखी हुई है, उसके सामने उसकी उन्होंने एक्चुअल शेयर लिख दिया है, तो वो उससे भी कैलकुलेट हो जाता है। अब रही बात आगे, उसके बाद उन्होंने एक्चुअल एरिया उसका लिख दिया है। एक्चुअल एरिया के बाद उसमें फिर वो ज़रूरी पासबुक वगैरह का रेफरेंस के इफ़ देयर इज़ एनी लोन इन फेवर इन अगेंस्ट दिस लैंड, उसका नंबर उन्होंने लिखा हुआ है। फिर उसके सामने नाम काश्तकार है, काश्तकार के सामने एक लिखा हुआ है, कॉलम नंबर 5 है। कॉलम नंबर 5 के ऊपर लिखा हुआ है कितात, कितात, कितात यहाँ पर 35 लिखे हुए हैं। मीनिंग देयर बाय द टोटल खसरा नंबर इन दिस केवट आर 35। खसरा नंबर 8 कनाल का भी इसमें हो सकता है, कहीं किनारों पर 2 कनाल 3 कनाल का भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे खसरा नंबर 8 कनाल के ही हों, लेकिन 95% खसरा नंबर 8 कनाल के होते हैं। अगर किसी विलेज में 9 कनाल 13 मरला के हैं तो फिर भी 95% जो खसरा नंबर है वो इतने के ही होते हैं। सिर्फ चंद खसरा नंबर जो हैं वो कहीं से पोर्शन किसी ने बेच के अलग अलहदा किया हो, ये हो जाता है इस वजह से, या बाउंड्रीज़ के ऊपर खसरा नंबर छोटे आ रहे होते हैं। अदरवाइज़ खसरा नंबर छोटे नहीं आ रहे होते। विलेज आबादी के साथ जहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हों वहाँ पर खसरा नंबर छोटे आ रहे होते हैं, अदरवाइज़ नहीं आ रहे होते। तो मीनिंग देयर बाय आप यू कैन नॉट कैलकुलेट द थिंग कि यहाँ 35 कितात मेंशन किए हैं तो आप इसे कैलकुलेट करें कि मल्टीप्लाई बाई 8 कनाल, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये उससे कम भी हो सकता है एरिया ना, ये बात आपको समझाने का मकसद ये है। उसके बाद लिखा हुआ है सालम केवट, जो कॉलम नंबर 6 है उसमें लिखा हुआ है सालम खाता। अब सालम खाता जो है ये कह रहा है कि टोटल एरिया ऑफ दिस केवट, टोटल एरिया ऑफ दिस केवट ये बता रहा है ये। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल एरिया ऑफ केवट दिस है, ये अकेले मालिक नहीं है जिनका 1-1 2-2 कनाल सामने लिखा हुआ है। आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप समझेंगे कि ही इज अ को शेयरर। अगर फर्ज करें यहाँ टोटल खाता के सामने फर्ज करें यहाँ पर ये 1 कनाल इसका, 1 कनाल इसका, 4 कनाल की फर्द है। अब यहाँ पर अगर है ही 4 कनाल तो आप समझ जाइए कि द पर्सन नेम हु इज मेंशन्ड इन दिस फर्द, दोज आर द ओनली ओनर्स, नो अदर पर्सन इज ओनर। लेकिन आपको ये फर्द बराए रिकॉर्ड दी गई है, फर्ज करें लिखा है फर्द बराए जाती रिकॉर्ड। इससे आप फौरी तौर पर समझे कि नहीं, यहाँ पर पढ़ें आप, कॉलम नंबर इसका 6 पढ़ना है आपने, आपको फौरी तौर पर पता लगेगा कि ही इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल ओनर, देयर आर अदर को शेयरर्स एंड ही इज आल्सो को शेयरर एंड he is not entitled
टू सेल द लैंड विद स्पेसिफिक खसरा नंबर। ये भी बात आप समझ लेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ द सेल डीड। ये आपको बात पता होना चाहिए, इसके फर्द को पढ़ने से पता चलेगा आपको इस बात का। एक बंदा कहता है मैंने ये फला खसरा नंबर सेल करना है, हाउ ही कैन सेल? ही इज नॉट ऑथोराइज्ड। दिस फर्द इज सेइंग ही इज नॉट ऑथोराइज्ड। ईच एंड एवरी co-sharer if ready to sell the specific khasra number by signing the sale deed as a vendor or as a witness, then you may be authorized to purchase the specific khasra number. Otherwise you are not authorized to purchase the specific khasra number. But all these things can be perused from this document. ये बात बड़ी क्लियर है। अब देखिए इसमें एक लास्ट कॉलम है, कॉलम नंबर 10 है। उससे पहले भी 2 कॉलम है, उसमें लिखा है वसाइल आप पाशी लिखा हुआ है। फिर एक और बात लिखी हुई है, देखें कॉलम नंबर 7 में वसाइल आप पाशी जो लिखा हुआ है उसमें वो लिखेंगे कि वेदर दिस लैंड इज कल्टिवेटेड बाय द ट्यूबवेल और बाय कैनाल और नहर, वो लिखेंगे राजबा फला, नहर फला इसमें लिखा होगा। आप इसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। आप एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर रहे हैं, आपने एक कॉपी देखनी है, आपको पता चलेगा कि ये तो दिस इज द लैंड इज बीइंग कल्टीवेटेड थ्रू ट्यूबवेल और थ्रू कैनाल वाटर। बाज़ औक़ात इस पे लिखा होता है नल नहरी, ठीक है। अब नल नहरी जो है इसका मतलब है नल आमतौर पे ट्यूबवेल को कहते हैं और नहरी के साथ नहर भी है और ट्यूबवेल भी है। आमतौर पे नहरें 6 महीने की भी होती हैं और फिर 6 महीने जो है वो चलता है ट्यूबवेल चलता है। तो ये चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, पढ़ने की बात है। नल चाही लिखा होता है, चाही मीन्स वेल। अब वो ट्यूबवेल बन गया है, अदरवाइज इट वाज वेल, ये कुआं था कभी, तो उसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है नल चाही। अब देखें मैं वो भी अर्ज कर दूं, मेरे फादिल दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वो मरला 272 फुट का होता है। देखें मरला 225 का भी होता है, 272 का भी होता है। अब देखें ये 1947 से पहले की मेजरमेंट्स हैं, कोई नई मेजरमेंट्स क्रिएट नहीं हुई। लाहौर में बादशाही मस्जिद जहां पे लाहौर में है, इससे पहले लाहौर इधर था, ठीक है, और इसके बाद शेखुपुरा शुरू हो जाता था। अब जब लाहौर इधर था तो शेखुपुरा की मेजरमेंट 272 मरला की थी, लाहौर की उस वक्त भी 225 मरला की थी, 225 स्क्वायर फुट फी मरला। वो आज भी वही है और आइंदा भी वही है। तो ईच एंड एवरी जो है ना हर जगह पर नहीं है, यहाँ से शेखपुरा से आगे तक सारा 272 है, इधर से साहिवाल तक सारा 225 है। तो ये बात 1947 में भी लिखी हुई है और उसमें जो जंतरीज हैं उनमें ये बात लिखी है, बल्कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में ये बात मेंशन्ड है। सर आपका कोई केस तो नहीं है ऐसा? अब देखें वो तो एक बॉर्डर बेल्ट है, बॉर्डर बेल्ट पर 5 माइल्स एरिया जो है ना वो दिया हुआ था उस वक्त डिफेंस पर्पसेस के लिए। तो वो 5 माइल बेल्ट जो है ना इंडिया के साथ साथ सिर्फ वो दी हुई थी। उस वक्त तो सारा लैंड था और बैरन थी, अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप भी होगी और लैंड की कीमत भी बढ़ गई है, तो वो उनके कंट्रोल में है। अलॉटमेंट तो फिर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही कर रहा होता है। हाँ वो है, वैसे वो एक सेपरेट इशू है, वो सब्जेक्ट नहीं है आज का ना लंबी बात है। मेरे फादर से एक और बात कर रहे थे। जी भाई देखें ये तो इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट है, मलकियत का सबूत है ये, ठीक है, और मलकियत का सबूत है और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी यही है, ठीक है। वो भी कंसेप्ट नहीं है ठीक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सिर्फ सेल डीड है, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। अब यू हैव टू ड्रा द शेयर ऑफ वाटर एज पर योर एंटाइटलमेंट
अगर आपका 20 कनाल है तो आपको उसके मुताबिक मिल जाएगा, जो वहाँ पर रेशो चल रही है 1 घंटा चल रहा है। अगर आपका मतलब 10 कनाल है तो मुमकिन है वहाँ आधा घंटा हो। तो वो हर एक का ना शेयर वहाँ पर वो इरिगेशन डिपार्टमेंट तय कर रहा होता है एज पर इंटाइटलमेंट। सर हाँ, अब देखें, मैं ये क्वेश्चन बड़ा अहम है भाई, आपके सुनने वाला क्वेश्चन है ये जो फादिल दोस्त ने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। देखें, शामलात इज ए ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट पर्सन। शामलात इज ए ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट पर्सन। नोट कर लें, ये बातें कम ही बताएगा आपको कोई। शामलात is a ownership of private persons. The state has no concern. The landless person has no concern at all. Even he is residing in the village, he has no concern. This is the title, this is the title, this is the मलकियत। ठीक है, शामलात को ऐसा नहीं है कि ये सरकार की जगह है, जो मर्जी वहां पर जाकर काम कर ले और जो मर्जी वहां बिल्डिंग बना दे और जो मर्जी उस पर कब्जा कर ले। नॉट एट ऑल, ये कंसेप्ट ही गलत है। ठीक है, और कहां पे लिखा है ये जब भी शामलात जिस विलेज में मौजूद है उसमें इसका अलहदा खेवट है, जो सेपरेट खेवट है उसमें लिखा हुआ है कि हसब रसद खेवट मालकान। दोबारा बताता हूं मैं आपको लफ्ज़, हसबे रसद खेवट मालकान, मीनिंग देयर बाय द पर्सन हु इज ए ओनर ऑफ, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल द पर्सन हु इज ए ओनर ऑफ द 100 कनाल इन दिस विलेज, ही विल बी इंटाइटल्ड ऑफ द 6 कनाल ऑफ शामलात लैंड एज ए ओनर। द पर्सन हु इज ए ओनर ऑफ 200 कनाल, ही विल बी द ओनर ऑफ शामलात 12 कनाल, meaning thereby the Shamlat is also ownership. There are many misconceptions, but there should not be any misconception. Any other question? एक और बता दूं मैं आपको शामलात के बारे में रिलेटेड, जो आबादी देह है ना जी, that is a different thing. आबादी देह में लैंडलेस आदमी मौजूद होता है जिसका मलकियत नहीं है, जो वहाँ पर बैठते हैं आबादी देह में उनको वो उठाते नहीं है, वो विदाउट हैविंग एनी सेल डीड एंड विदाउट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल, दे आर रिजाइडिंग देयर सिंस लॉन्ग, एंड द ओनर एंड द हाउसेज आर बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैम्प पेपर्स ओनली। ठीक है, टाइटल इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड बट द पोजेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ये बात है। हाँ जी देखें, फिलहाल बिलाखर तो आपको फर्द ही चाहिए जी। देखें, रजिस्ट्री तो आपने करवानी है, अगर आप म्यूटेशन भी सैंक्शन करवा लेंगे, द म्यूटेशन इज बीइंग सैंक्शनड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज, and he is writing an order on the mutation, and the sale deed is also executed by the same officer. वही तहसीलदार जो है वही सब रजिस्ट्रार होता है एक कैपेसिटी में, दूसरी कैपेसिटी में ही इज ए रेवेन्यू ऑफिसर। द फीसेस आर टोटली बीइंग पेड, बोथ फीसेस आर पेइंग, द फीसेस आर इक्वल, द फीस ऑफ स्टैम्प पेपर एंड द अदर फीस आर इक्वल, बट द सेल डीड is reflecting all the terms and conditions regarding the sale, but the oral sale mutation is not reflecting all terms and conditions. This is the difference. अच्छा, अब मेरा ख्याल है पार्टीशन का एक मैटर है, उस पर आ जाएं। हाँ, टाइम तो काफ़ी हो गया वैसे आपको, क्योंकि वो फिर तवज्जो कम हो जाती है ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाए तो। सर अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि मैं पार्टीशन पे आपको कुछ अर्ज कर दूँ ना। देखें, पार्टीशन जो है ना अब दो तरह की है। एक तो पार्टीशन है कि आपने घर की करवानी है। पार्टीशन क्या होती है सर? हाँ, पार्टीशन होगी तकसीम अमंग द को शेयर्स, जो हिस्सेदारान हैं उनके दरमियान तकसीम। किसी का हिस्सा किसी प्रॉपर्टी में ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है,
और वो चाहते हैं कि उनको सेपरेट पोर्शन एलोकेट कर लिया जाए, उनका नाम इस रजिस्टर हकदारान में एज ए कोशेयर रिफ्लेक्ट ना हो, या उनका ओनरशिप का सर्टिफिकेट अलहदा हो विद द एक्चुअल मेजरमेंट्स के इस आदमी का पोर्शन इतना आता है, उसकी ये एक्चुअल मेजरमेंट है। दिस इज अ पार्टीशन। ठीक है, अब मैं आता हूं पहले घर की पार्टीशन पर ना। देखें, घर की पार्टीशन के लिए तो ठीक है, आपने ना एक सिविल सूट फाइल करना है, और वो घर ऐसा है कि जिसमें आपने कैलकुलेशंस होनी है, लोकल कमीशन के ज़रिए कैलकुलेशन होनी है, प्रॉपर्टी डीलर्स के ज़रिए असेसमेंट होनी है, फिर आपने उसकी कैलकुलेशन फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर की, थर्ड फ्लोर की भी करनी है, फिर आपने उसमें कैलकुलेशंस करनी है कि वो कैसे कैसे इसकी डिवीजन हो सकती है, कि या इसको डिमोलिश ही करना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है, या इसकी ऑप्शन करनी पड़ेगी, ये उसकी एक प्रपोजल हो जाती है। ये तो एक हाउस की पार्टीशन है। लेकिन अब बाज़ औक़ात आपने ना लैंड की पार्टीशन करनी है। अब लैंड में क्या है, लैंड ऐसा है कि उसमें कुछ घर बने हुए हैं और कुछ लैंड खाली है। ठीक है जी। सॉरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हु विल कंडक्ट दिस पार्टीशन, विच कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। पहला क्वेश्चन तो ये। देखें, अगर फर्ज करें 4 कोशेयर हैं, एक बड़ा भाई था, उसने अपनी जगह में घर बना लिया, जो छोटा भाई है ना उसको खाली जगह दे दी है। अब उसकी बिलाखिर तकसीम होनी है। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है कि इस मकान में मेरा हिस्सा है, तो फिर इसका मतलब है मकान की तकसीम की ज़रूरत नहीं पड़ रही, घर को गिराने की या फरोख्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब अगर नहीं पड़ रही तो फिर बड़ा आसान तकसीम है। जिन्होंने घर बनाया है उतना एरिया, उतना कनाल उसका दे दिया, को खाली दे दिया, बाकी 2-4 मरले घर के दे दिए, उसके पास चला गया। जो खाली जगह है वो बाकी तकसीम होनी है, वो मिलनी है उनको जिन्होंने कुछ तामीरात नहीं की। कौन करेगा? फर्ज करें हम इसको सिविल सूट फाइल कर देते हैं और मकान की डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं है, हाउस की डिवीजन, कंस्ट्रक्टेड हाउस की डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं है, बट द हाउसेज आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस पोर्शन विच इज रिक्वायर्ड टू बी पार्टीशन। द मैटर विल बी रेफर्ड बाय द रेवेन्यू टू द रेवेन्यू ऑफिसर बाय द सिविल कोर्ट, who will give the actual demarcation of the total area and the measurement, and after giving the measurement he will propose the partition, accompany with the local commission। कोई भी सिविल जज साहब किसी भी ज़रई रकबे की तकसीम नहीं करवा सकते जब तक पटवारी साथ ना हो या रेवेन्यू ऑफिसर साथ ना हो। पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ना लोकल कमीशन के पास कोई रिकॉर्ड है, ना सिविल कोर्ट के पास कोई रिकॉर्ड है, और ना ही एक्चुअल मेजरमेंट है। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूट मेजरमेंट्स में नहीं है तो फिर पार्टीशन हो सकती है, फिर तो खानगी तकसीम भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं फैमिली पार्टीशन, फिर तो वो भी हो सकती है, फिर तो डिस्प्यूट नहीं है। तो लेकिन अगर देर इज ए सम कंस्ट्रक्टेड एरिया, इवन देन द यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर। No need to file a suit for partition before the civil court. If there is a dispute to partition the house, to demolish the house, to demolish the walls of the house, then you can file a suit before the civil court for assessment of the prices and assessment of the cost and so and so. ये है एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखें, ऐसा है कि द लैंड हैज़ बीन सोल्ड बाय वन कोशेयर, द लैंड विच हैज़ बीन सोल्ड बाय वन कोशेयर ही आल्सो हैंडेड ओवर द पोजेशन टू द वेंडी, and Wendy took over the possession and constructed their own something. This land already was in hissedari possession of that person,
who sold this thing. This हिस्सेदारी possession is also mentioned in the cultivation column, often mentioned in the cultivation column. और तमाम जो ओल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें तमाम में हिस्सेदारी कब्जा तमाम हिस्सेदारों का तहरीर है। हाँ, हर एक का नाम और उसमें जो जहाँ पर है ना खतौनी नंबर, और खतौनी नंबर के आगे जो लिखा हुआ है कि ये नुमान हिस्सेदार बदरिया मगारा फतेह मोहम्मद, ये लिखा हुआ है उसमें, उससे पता चल रहा होता है पिछली जमाबंदी आय से, रजिस्ट्रारदारान ज़मीन से, कि ये किसका कब्जा पुराना था इस पे। और फिर जब पार्टीशन होनी है तो पोजेशन हैज़ टू बी केप्ट इन व्यू। पार्टीशन करा ले तो सर अगर न्यू पार्टीशन हो जो तो काफज एक्ट थी सड़क के ऊपर किया है जमीन की वैल्यू है वो चेंज है, लेकिन ये अब वो लिस्ट का स्टार्ट कि मैं इसके ऊपर काफज 10-12 साल से, लिहाजा इसका जो मखसूस नंबर है वो मेरे नाम पे ही वो लगाया जाए। वो लेते हैं स्टेंस, बनता भी है, स्टेंस भी बनता है, उसका जेन्युइन स्टेंस है। उसकी वजह ये है कि ही हैज़ पेड द प्राइस ऑफ द वैल्यूएबल लैंड विच इज सिचुएटेड ऑन द रोड साइड at the time of purchasing. He has paid the higher price, he is entitled and he has a possession also. और फिर वो उस आदमी ने उसको बेचा है, they have not objected at the time, at that time, तो उसका है। लेकिन पार्टीशन के वक्त ये भी एक लॉ है कि तमाम रकबे में से देखा जाएगा कि कौन कौन सा कितनी वैल्यू है, उसकी कैटेगरी मुकर्रर की जाएगी। मैं आता हूँ वो पार्टीशन पर, मैं आपको बताता हूँ। देखें, द पार्टीशन इज द एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट by impleading all the co-sharers as a respondent. The application can be filed by one co-sharer or more than one co-sharer, but you have to implead all the co-sharers as respondent. And the notices are required which have to be issued to the respondents after their presence. After their presence, the proceeding of the section 141 are required to be conducted by the revenue officer. 141 क्या कहता है, वो देखेगा उसमें कि जनाब इसमें पार्टीशन में कोई रुकावट है। 136 में तो पहले वो देखेगा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी पार्टीशन में नहीं कर सकता ना। कुछ कॉमन है, कुछ मस्जिद है, कुछ और मामलात हैं, मुमकिन है उसमें बनाई हुई हो, तो वो कॉमन पर्पसेस की है, बाज़ औक़ात रास्ता जात हैं, वो कहेगा ठीक है इनकी तो पार्टीशन नहीं हो सकती, उनको एक्सक्लूड भी कर देगा, लेकिन ड्यूरिंग पार्टीशन कर देगा एक्सक्लूड। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सक्लूड करेगा। बाज़ औक़ात जैसे ओल्ड उसमें था, वो ट्यूबवेल थे वो मुश्तरका रखे गए थे, वेल मुश्तरका, कुआँ जात मुश्तरका रखे गए थे, तमाम को रास्ता जात दिए गए थे, तमाम को वाटर चैनल का पैसेज दिया गया था, तो वो उसमें दिया गया, उसकी उस तरह पार्टीशन होती है। अब भी वो इसी तरह ही होनी है। अब उसके बाद उसने देखना है कि वेदर देयर इज एनी मैटर ऑफ टाइटल इज पेंडिंग बिटवीन द पार्टीज ऑलरेडी इन द सिविल कोर्ट, और वेदर ही इज कॉम्पिटेंट टू प्रोसीड फर्दर और नॉट। If there is a matter of title is pending, he can stop the proceedings and he can refer the parties to the civil court. If he is not referring, then he is competent to decide the matter of title. Even matter of title can be decided during the partition by the revenue officer. Now the law has been amended. In earlier law, this has been provided that he can decide the matter of title. Now again has been provided under section 141. He is competent to decide the issue of title. ठीक है, उसने इशू ऑफ टाइटल डिसाइड कर देना है, उसके मुताबिक वो एविडेंस भी मंगा सकता है और ख़ुद भी रिकॉर्ड कर सकता है, और उसके बाद वो इशू ऑफ टाइटल डिसाइड कर देगा। एक बात चलें, इफ़ देयर इज़ नो इशू ऑफ टाइटल, नाउ ही हैज़ टू प्रोसीड फर्दर फॉर पार्टीशन। उसने क्या करना है, उसने मोड ऑफ पार्टीशन बनाना है। मोड ऑफ पार्टीशन के इंग्रेडिएंट्स हैं। मोड ऑफ पार्टीशन उसने सैंक्शन करना है आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई ऑफ द एप्लीकेशन एंड आफ्टर टेकिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ ऑन पार्टीशन एप्लीकेशन, आफ्टर हियरिंग द बोथ पार्टीज, ही पास एन ऑर्डर। दैट ऑर्डर इज कॉल्ड मोड ऑफ पार्टीशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर प्रेजेंस ऑफ पार्टीज। मोड ऑफ पार्टीशन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए, मोड ऑफ पार्टीशन में उसने लिखना है
के जितने इस तादाद दरख्त हैं, ट्रीज स्टैंडिंग ऑन द लैंड, who will be the owner those trees, or the price is required to be assessed, or the trees will be go to the owners according to the land portion of their entitlement. ये बात उसमें वो तहरीर करेगा। फिर वो तहरीर करेगा उसमें कि रास्ता जात फराहम किए जाएंगे, लोगों को फना फना किए जाएंगे। उसमें वो मेंशन करेगा कि उसमें मेंशन करेगा मोड ऑफ पार्टीशन में वाटर चैनल्स का मेंशन करेगा। इससे भी एक अहम बात जो उसने मेंशन करनी है, दैट इज के कैटेगरीज ऑफ लैंड। देयर आर टू और थ्री कैटेगरीज ऑफ द लैंड विच रिक्वायर्ड टू बी बाइफरकेटेड। लैंड इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थ्री कैटेगरीज। एक दर्जा अव्वल है, एक दर्जा नौम है, एक दर्जा सौम है। ये जो सड़क के ऊपर एरिया है ये अलग दिया जाएगा। जो गांव के साथ न्याय का एरिया उसे हम कहते हैं एडजेसेंट टू द विलेज, ये अलग तकसीम होगा। ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पास सच मोड ऑफ पार्टीशन। देन द ऑर्डर ऑफ मोड ऑफ पार्टीशन हैज बीन पास्ड। दिस ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी चैलेंज्ड if any person is aggrieved. The 30 days time limit has been provided under section 142 of the Land Revenue Act. The appeal can be filed against this order within 30 days. जी please. सर एज वी नो कि लैंड रेवेन्यू जो एक्ट है ये एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये जो लैंड है ये एग्रीकल्चर है या नहीं है? ठीक है, बाज़ डिफरेंट जो है एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर भी जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई है वहाँ पे पार्टीशन अगर हम देखें वो कैसे होगी? और बाज़ जो है वो एक अर्बन लैंड है उसकी जगह उन्होंने पैच है उसे एग्रीकल्चर बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर कल्टीवेशन सब कुछ हो रही है, वहाँ पे पार्टीशन कैसे देखें? देखें मैं आपको अर्ज करूँ ना, सिविल कोर्ट में बहुत सारी टेक्निकल ग्राउंड हैं जिसके ऊपर ना हम नॉन सूट कर देते हैं लोगों को। देखना तो ये है कि लोगों के साथ इंसाफ कैसे हो सकता है। अब बात यह है कि हर रेस्पोंडेंट चाह रहा होता है कि टेक्निकल ग्राउंड पे किसी आदमी को नॉन सूट कर दिया जाए। इस बात का इंसाफ से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, सीपीसी में सेक्शन 151 ही काफ़ी है समझने के लिए कि उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि आपने इवन विदाउट अडॉप्टिंग द प्रोसीडिंग्स टोटल प्रोसीडिंग्स यू कैन पास एन ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। देखें, मैंने अर्ज़ कर दिया कि जब किसी हाउस की कंस्ट्रक्टेड एरिया की बाइफरकेशन अगर होनी है ना तो फिर सिविल कोर्ट में उसकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज ऑल लैंड कैन बी पार्टीशनड even comprising on the society area. If it has to be divided into the canals and the marlas, it has to be divided by the revenue officer and can be divided after sanction of the mode of partition. There are categories of the land. ये ज़रई एरिया है, इतना एरिया इसमें कीमती है, इसका 1 एकड़ के 2 एकड़ दिए जाएंगे जो सड़क के ऊपर है, 1 कनाल के 2 कनाल दिए जाएंगे, बकिया जो है एरिया में तकसीम होगा। और बल्कि ऐसा होगा कि सड़क के ऊपर 10 कनाल है, ये 5 को शेयरर्स हैं, यहाँ पर हर एक को 2-2 कनाल मिलेगा, बाकी जो एरिया है उसको अलग तकसीम होगा। दिस इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट जॉब ना, ये बात है, ये कोई मसला नहीं। अच्छा, तो सेक्शन 142 हो गया, उसमें अपील हो गई। फ़र्ज़ करें किसी ने अपील फाइल कर दी मोड ऑफ पार्टीशन के खिलाफ, इट विल बी डिसाइडेड एंड टिल द डिसीजन ऑफ द केस द मैटर विल बी ऑटोमेटिकली विल बी स्टेड। But after disposal of this matter, the matter will be decided by the revenue officer. अब रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसने नक्शाजात बनाने के लिए पटवारी हल्का से कहना है नक्शाजात, these are not maps, नक्शाजात आ रहे चार्ट, टेबल कह सकते हैं आप इसको, टेबल अलिफ, टेबल बी, टेबल सी, ये चार्ट हैं। इसमें लिखेगा, पहला टेबल है, टेबल नक्शा अलिफ उसे हम कहते हैं, उसमें लिखेगा टोटल एरिया and the share of the each co-sharer by mentioning the area in canals etc. वो नक्शा अलिफ बन गया। अब नक्शा बे में दोबारा नाम लिखेगा, तमाम का एरिया लिखेगा, फिर आगे लिखेगा कि इसके पोजेशन में इतना एरिया है, इसके पास इतना ज़्यादा है, इतना कम है। आगे लिखेगा इसके पास जो है ना जी बंजर कम है या आबाद रकबा कम है, फिर लिखेगा वो कि उसमें जो है ना रूरल एरिया उसके पास कम है या अर्बन कम है, वो लिखेगा। दिस इज ए नक्शा बे।
अब नक्शा जीम क्या है? नक्शा जीम इज ए इक्वल टू ऑर्डर, इज ए इक्वल टू ऑर्डर। उसमें वो लिखेगा कि फला फला कोशेयर्स है, मैं इनको जो है उसके सामने एक कॉलम बनाएगा, वो लिखेगा, उसके बाद दूसरा कॉलम सामने आएगा, उस सामने के कॉलम में वो लिखेगा इसी किस्म, इसी तरह ये कॉलम होगा, दूसरा ये कॉलम होगा, इस कॉलम में लिखेगा कि फला फला खसरा नंबर विद एरिया, मैं ये फला फला को एलोकेट कर रहा हूँ। After preparation of the Naksha Alif Be Jim, he will put the case for objections of both parties. अब फिक्स कर दिया केस उसने फॉर ऑब्जेक्शन ऑफ ऑल द पार्टीज, उसके ऊपर अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज द ऑर्डर ही विल पास द फाइनल ऑर्डर एज पर द मेजरमेंट्स एंड द वंडाजात गिवन इन द नक्शा जीम एंड द पार्टीशन टू दैट एक्सटेंट विल बी कंप्लीटेड। अब उसके बाद अब पार्टीशन हो गई, ऑर्डर हो गया, then he has to draw instrument of partition under section 145, instrument of partition, which is required to be written, the same judgment is required to be written on the stamp papers. You can say that document है सनद सुल्तानी, वो सनद सुल्तानी है, वो एक स्टाम्प के ऊपर वो सारा ऑर्डर लिख देगा, वो उसको फाइल का हिस्सा बना देगा, वो फाइल का हिस्सा बन गया। देन द प्रोसीडिंग फॉर पोजेशन अंडर सेक्शन 146 आर रिक्वायर्ड, दफ़ा 146 में उसके बाद वो कब्ज़ों के ऑर्डर कर देगा और वो उसके मुताबिक कब्ज़ादात दिलवाएगा। तो ये पार्टीशन इस तरह जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर कोई हाउस वगैरह और उसकी नहीं होनी ना, कोई तकसीम घर की नहीं होनी, तो वो तमाम जहाँ पर भी खसरा और खेवट और इन्वॉल्व है ना, वहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर नहीं करनी है। इवन द सिविल जज हैज़ टू रेफर द मैटर टू द रेवेन्यू ऑफिसर, वो वंडाजात बना के दे रहा होता है, फिर उसके ऊपर ऑर्डर कर देते हैं, देन सब्सिक्वेंटली द रेवेन्यू ऑफिसर हैज़ टू इम्प्लीमेंट द सेम ऑर्डर। दीज आर द थिंग। काफ़ी हो गया जी वैसे। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज रेफरी। हाँ, क्योंकि 1 घंटा हो गया तो मेरा ख्याल है आप भी थक गए होंगे। तो 2 ही मैटर हुए हैं फिलहाल, तो एक म्यूटेशन के बारे में हो गया अपील्स का, और एक जो है ना ये पार्टीशन का हो गया। वैसे तो ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। एक बात मैं बता दूं आपको, तो रह गई है, मैं समझता हूँ वो ज़रूरी है बतानी ना। देखिए सेक्शन 172 जो है ना लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वो बड़ा क्लियर कर रहा है, वो बड़ा क्लियर ये कर रहा है कि jurisdiction of the civil court is specifically barred। अब जब स्पेसिफिकली बार्ड है, उसमें उन्होंने म्यूटेशंस के बारे में पार कर दिया, डिमार्केशन के बारे में बार कर दिया, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में बार कर दिया, क्रिएशन ऑफ खसरा नंबर्स एंड द लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज के बारे में बार कर दिया, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बार कर दिया। तो meaning thereby the appeal, the remedy of appeal and the revision and the review has been provided under section 161, 163 and the 164। तो वो चलेगी, जुरिस्डिक्शन जो है उसकी की चलती है, और उसमें वो हम उसको इन्वॉल्व करते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स को उसमें, जो कि आमतौर पे नहीं बनती। अब एक और बात, आखिरी बात रहेगी करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड की। देखिए हम करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड की एप्लीकेशंस दे रहे होते हैं, तो करेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड की जुरिस्डिक्शन रेवेन्यू कोर्ट के पास है। इवन द लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्रीज कैन बी करेक्टेड, द रेवेन्यू रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड। द रेवेन्यू रिकॉर्ड कैन बी करेक्टेड बाय द पर्सन हु हैज मेड दिस रिकॉर्ड। ही नो व्हाट इज अ डेफिशिएंसी इन दिस रिकॉर्ड एंड व्हाट इज अ मिस्टेक इन देयर इन। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है ना, ये बात है। तो और कोई सवाल बताइए फिर। हाँ जी, काफी ये केस जब कंप्यूटराइज हो गया तो जो पुराने मालकान थे वो ही दोबारा शो हो जाते हैं कि वो जब सेल भी किया, इवन के केस देखा है कि लोगों को उधर घर भी बने हुए हैं, 60-70 एकड़ को जमीन है, कब्जा है उनके पास। या लेकिन वो जो पुराना रिकॉर्ड था, जो जिस तरह कंप्यूटराइज हुआ, तो जिसने उसे 100 साल पहले सेल की थी, वो सारी जमीन टोटल उसके नाम। हाँ, ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है इनके लेवल पे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के लेवल पे। देखें, दिस डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 4 years, आफ्टर मेंशनिंग द नेम्स ऑफ द न्यू लैंड ओनर्स।
इट हैज़ टू बी मेड आफ्टर, इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 4 years। फिर अब इनके नाम मालकान के कहाँ हैं? मालकान के नाम ये दिए हुए हैं लास्ट कॉलम में, ठीक है। वहां से बंदा पढ़ेगा कि अच्छा ये फला बंदा जिसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर नुमान लिखा हुआ है, इसने फला आदमी को लैंड ये सेल कर दिया, ठीक है। ये चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे ट्रेस हो जाता है। उसने वो पटवारी ने इंतकालात का रेफरेंस दिया होता है इनके सामने, सबके सामने। तो वो जब भी आपने लेना है, आपको बाहर तो लग रहा होगा कि ही इज द पर्सन नेम हुज नेम हैज बीन मेंशन्ड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, ही इज ए ओनर, बट ही इज एलिज्ड ओनर, ही इज नॉट ओनर, हिज नेम इज ओनली रिफ्लेक्टिंग इन ओनर, ही इज नॉट एक्चुअल ओनर। The ownership has been transferred through mutation to in favor of the different persons। तो वो पटवारी ने कैलकुलेट करके उसमें से देख के इंतकालात को निकाल के करना होता है, ये है बात। अच्छा, तो एक बात मैं बताऊं आपको, देखें लिमिटेशन जो है ना रेवेन्यू कोर्ट्स में इतनी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है जितनी और जगह पर है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू दैट एक्सटेंट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 167 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट। लेकिन एक और बात देखिए, अंडर सेक्शन 164 द वर्डिंग ऑफ रिविजनल पावर्स ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है इसमें? उसमें कहा हुआ है द रेवेन्यू ऑफिसर इज ए कॉम्पिटेंट टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस पेंडिंग or disposed of by any revenue officer। अब इस वर्डिंग में उन्होंने कह दिया पेंडिंग खा तहसीलदार के पास है तो उसको कमिश्नर बुला ले या एमबीआर बुला ले, तो ये बात कह दी उन्होंने। टाइम लिमिट उसमें लिखा नहीं, उन्होंने कह दिया डिसाइडेड और पेंडिंग। व्हेन देयर इज नो टाइम लिमिट, हाउ वी कैन इंपोज द टाइम लिमिट? In the interest of justice, the revenue courts are competent to provide the justice. Limitation has been given 90 days for filing of the petition under a revision petition, but that is on the motion of the parties, not as a suo motu proceedings. Even then, the application, you have filed an application that can be entertained, and he is legally competent to entertain that. Even the time barred, he can decide in the interest of justice. That's why there is a wisdom is behind this wording. So the aggrieved person should not be debarred from getting the justice। ये बात है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है। इसमें यानी बहुत गुंजाइश है, लिमिटेशन नहीं है सिविल रेवेन्यू कोर्ट्स में, इतनी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका मैटर है तो आप उसको हल करवा सकते हैं। It has to, this is a special statute, it has to be seen according to this wording। The Honorable High Court cannot entertain after 90 days, but the member board of revenue is a competent. This matter has been clarified by the 4 judges of the Supreme Court in PLD 1985 SC 208। उन्होंने कहा है कि this is the if the limitation has not been mentioned in the provision, how we can impose this? तो बहरहाल इसमें बहुत चीजें क्लियर हैं। तो एनी अदर क्वेश्चन भाई? दरअसल वो शामलात ऐसे है ना कि जब ये एरिया आबाद हुआ तो जितनी जितनी डेवलपमेंट किसी ने की ना उसके पीआर उनको दे दिए ना, अदरवाइज तो पहले सारे लैंड जितनी है वो बंजर होती थी कभी। अब वक्त के साथ साथ 100 साल पहले इतना रकबा आबाद नहीं था, देहात में मौजूद होता था, लेकिन शामलात को बाद औक़ात कॉमन पर्पसेस के लिए रखा गया, लेकिन रखा गया इन द ओनरशिप ऑफ लैंड ओनर्स। दैट इज नॉट ए स्टेट लैंड, दैट इज नॉट ए लैंड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज नो कंसर्न एट ऑल विद द शामलात लैंड। ये बात। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। एक अदर ग्रुप फोटो हो जाए प्लीज एंगल साहब के साथ, उसके बाद देन उसको कहते हैं ये करके सामने अगर आ जाए। मैं उधर आ जाता हूँ, ठीक। सब आप ही आ जाओ, आइए सामने से दोस्त आ जाए बस। Thank you very much. चलिए सर। आए ना please।
अच्छा, तो फिर ये हम इधर खड़े हो जाएं तो ये हम ऐसे हो जाएं अब सर, बल्कि ऐसे हो जाए हम सारे अगर खड़े हम हो जाएं तो अच्छी अगर बिल्कुल ऐसा अच्छी आ हो जाएगी। जाए तो चलें। हाँ इधर से यार तुम उतार लो। नदीम साहब आपकी भी आ सकती है वैसे। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। माशा कर ले। माशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया सर, ह्यूज ऑनर फॉर अस सर। अल्लाह सर, आपका शुक्रिया है सर, आपने दोबारा भी बीच में दिया। मैं आपको किताब पकड़ी हो लाना, तो किताब पकड़ना इधर से पकड़ वो सब ठीक है, आप खैरियत से हैं, आप किसी से ठीक। लो सर, सर बहुत शुक्रिया जी आप। हाँ ये साथ नहीं मिलेगा मुझे। ये माइक किसका है? ये मैं कर लेता हूँ। ओके थैंक यू साहब से माइक ले लो यार। ये भाई बता दो कल के लेक्चर जो है ना सर, एक तो कल के लेक्चर्स आप प्लीज अनाउंस कर लीजिए। और यार अभी प्लीज सेटल डाउन, आपके ब्रीफ छोटे से ही आपके लिए लेक्चर्स हैं दो, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम बीच में आपको करवाएंगे आपकी इजाज़त के साथ सर, और एक सेक्रेटरी साहब से हमने बीच में रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ पे आके आपने लाइसेंस हासिल कैसे करना है, और अगर आपको कोई मसले वगैरह आ रहे हैं सेकंड इंटीमेशन और उसके बारे में, तो वो आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं। प्लीज़ दो सेकंड के लिए बैठिए। जस्ट थोड़ी देर के लिए, जैसे वो अहमद साहब ने कहा है आप बैठिए, और जो कल की लेक्चर है वो आप आपको ग्रुप में जो है वो डिस्कशन की शेयर करें। मैंने अपना मुकदमा कल का तैयार करना है, उनके साथ बैठ के मैं तैयार रहूँगा सर। कैमरा वो ऑन करवा लीजिए जो दिखाना है। एक सेकंड प्लीज सर, एक सेकंड।